Now today we will be dealing with some of the nuanced concept of secondary evidence, and the nuances that I am talking about are not inherently complex. Let me be very clear right now. The complexity stems from inexperience and ignorance about the courtroom procedure, because often people are confused in the terminologies that are used by the court. So the terminology in these particular contexts that I am talking about right now is laying the factual foundation to lead secondary evidence and permission to lead secondary evidence. The application for permission to lead secondary evidence and its difference between laying the factual foundation to lead the secondary evidence, which is an essential condition. So I hope you have read section 64, 65, 66, and you have no confusions regarding that, because what I'll be doing right now is I'll be discussing the underpinnings of these sections when you read them together. Alright. Primarily pay attention to section 65 and 66. Since I've already discussed the section in the last lecture, I would not be reiterating the entire section again. So primarily, I want to bring your attention back to section 65A and to be read with section 66 of the Indian Evidence Act. Now you remember that in order to give secondary evidence of documents, and if your case falls under section 65A, then in order to make use of that provision, you have to first give notice as is envisaged under section 66 of the Indian Evidence Act. That part you understand because that is clear by the bare act itself. However, what would happen if you say that the original document is in the possession and power of the adverse party, and hence I would like to produce a photocopy of the very document, which would be secondary evidence in this case, but what happens is that the adverse party denies that it has been in possession or power of any document. Alright, first you need to understand this. So on this point, there is a good judgment of Ashok Dulichand versus Madhavlal Dubey, decided on 5th August 1975. Now let me explain to you what happened. Now in this case, the appellant filed an application to bring his case within the purview of section 65 clause A, and he prayed before the court that the respondent be ordered to produce the original document or the original manuscript, which according to the appellant was in possession of the adverse party. In the meantime, the appellant filed a photostat copy of the same document. He also filed an affidavit in support of the application, as the appellants and the respondents usually do. However, in the affidavits, it was nowhere stated that the photocopy that the appellant is submitting, its original is in the possession of the respondent. The original document is in possession of the respondent. That is not mentioned in the affidavit. Secondly, appellant also failed to explain as to what were the circumstances under which the photostat copy was prepared and who was in possession of the original document at the time its photograph was taken. Furthermore, the respondent denied of being in possession of having to do anything with the document and also filed affidavit for the same. In these circumstances, the High Court came to the conclusion that no foundational evidence or no foundation has been laid by the appellant for leading the secondary evidence in the shape of the photostat copy, and hence the photostat copy is not above suspicion. This view of the High Court was upheld by the Supreme Court in the case of Ashok Dulichand versus Madhavlal Dubey. What was the primary point of the High Court? That no foundation has been laid by appellant for leading the secondary evidence. ये किस फाउंडेशन की बात कर रहा है? देखिए, हमेशा याद रखिए, द फर्स्ट रूल इज दैट द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कंटेक्स्ट में बेस्ट एविडेंस क्या होता है? द प्राइमरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तभी तो आप सेकेंडरी एविडेंस लाएंगे. तो फाउंडेशन ले करने का मतलब यह होता है कि ओरिजिनल का क्या हुआ ये कम से कम कोर्ट को बताएं. On what grounds
is the secondary evidence being led, ये कोर्ट को बताएं. It is very important that you lay the foundation for introducing the secondary evidence. And what foundation will you lay is described under section 65 read with section 66. तो इस केस में हाई कोर्ट का ये कहना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यू अफर्म किया, कि पहली बात ऑपोजिट पार्टी कह रही है कि जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्पोंडेंट की पोजीशन में है. ठीक है, अपेलेंट कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन पोजीशन ऑफ द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट ने एफिडेविट पे डिनाई कर दिया कि ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, नॉर आई हैव एनीथिंग टू डू विद द डॉक्यूमेंट. साथ में जो अपेलेंट का जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसमें डिफेक्ट ये भी था कि जिस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपेलेंट बता रहा है ओरिजिनल की है, उस पॉइंट पे एफिडेविट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन द पोजीशन ऑफ द रिस्पोंडेंट. इन दिस सिचुएशन हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो फोटोस्टैट कॉपी जो हमारे सामने सबमिट की गई है, इट इज नॉट अबव सस्पिशन बिकॉज द अपेलेंट हैज लेड नो फाउंडेशन फॉर द सेम. अब अपेलेंट लाने की इसको किस क्लॉज में कोशिश कर रहा था? 65A में, जहां पे द डॉक्यूमेंट इज इन द पोजेशन or power of the person against whom it sought to be proved, and after giving notice under section 66 he does not produce it. तो ये फेल हो गए कि इन्होंने जो साथ में एफिडेविट फाइल किया था, जो बाकी के सर्कमस्टेंसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ये वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि जो सेकेंडरी एविडेंस है इट इज अबव सस्पिशन. एंड हाई कोर्ट सेड दैट नो फाउंडेशन हैज बीन लेड फॉर द सेम. No foundation has been laid for introducing the secondary evidence. पहले आपको फाउंडेशन समझाना जरूरी है कि आप फाउंडेशन समझ जाएं. फाउंडेशन क्या है? सेक्शन 65 की जो ग्राउंड्स हैं यही फाउंडेशंस हैं. अब इस केस में फाउंडेशन में डिफेक्ट कहां था? जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था उसमें ये नहीं मेंशन था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसकी फोटोकॉपी इन्होंने कोर्ट में एज अ सेकेंडरी एविडेंस सबमिट की है वो रिस्पोंडेंट की पोजीशन में है. ठीक है, ये डिफेक्ट था जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने बोला कि द फाउंडेशन हैज नॉट बीन लेड बाय द अपेलेंट फॉर लीडिंग द सेकेंडरी एविडेंस. और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जेक्शन एज इट इज अपहेल्ड किया. इसी पॉइंट पे एक और केस है, राकेश मोहिंद्रा वर्सेस अनीता बेरी. दैट इज ऑल्सो अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब ये इन्होंने सेक्शन 65 के क्लॉज C के कंटेक्स्ट में बोला है, और एपेक्स कोर्ट ने बोला द प्री कंडीशंस फॉर लीडिंग द सेकेंडरी एविडेंस आर that the original document could not be produced by the party relying upon such documents in spite of best efforts and is unable to produce the same which is beyond their control. Then Supreme Court says that the party sought to produce secondary evidence must establish for its non-production of primary evidence. जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस लीड करना चाहती है दैट मस्ट एस्टैब्लिश कि प्राइमरी एविडेंस क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. So unless and until it is established that the original document is lost or destroyed or is being deliberately withheld by the party in respect of whom the document is sought to be used, then the secondary evidence in respect of that document cannot be accepted. ठीक है, अभी हम सिर्फ फाउंडेशन ले करने की बात कर रहे हैं. Similarly, a 2020 judgment of Jagmeil Singh versus Karamjeet Singh also reiterate the same point. It says that a perusal of section 65 makes it clear that secondary evidence may be given with regard to the existence, condition and the contents of the document when the original is shown or appears to be in the possession or power against whom the document is sought to be produced, or of any person out of the reach of or not subjected to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after notice mentioned in section 66 such person does not produce it. It is a settled position of law that a secondary evidence to be admitted, the foundational evidence has to be given, being the reasons as to why the original evidence has not been furnished. तो फाउंडेशनल एविडेंस किस पॉइंट पे होता है कि ओरिजिनल क्यों नहीं आया. ठीक है, फाउंडेशन समझ लीजिएगा तब मैं परमिशन पे जाऊंगा, क्योंकि फाउंडेशन इज एसेंशियल, परमिशन इज नॉट. देन सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड and said that it is a right that under Evidence Act facts has to be established by primary evidence and secondary evidence is only exception to the rule of which foundational facts have to be established to account for the existence of primary evidence. In other words, Supreme Court is saying
कि जनरल रूल है बेस्ट एविडेंस रूल, आप प्राइमरी एविडेंस से डॉक्यूमेंट को प्रूव करेंगे, और जहां पे प्राइमरी एविडेंस नहीं है तब आप सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो दिखाना होता है ना कि जो सेकेंडरी एविडेंस आप बता रहे हैं जो सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी कि पहला आपको यह बताना पड़ेगा फर्स्ट कि वाई द प्राइमरी एविडेंस वाज नॉट प्रोड्यूस्ड, एंड सेकेंडली कि जिस चीज को आप सेकेंडरी एविडेंस कह रहे हैं दैट हैज बीन मेड बाय द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, है ना। अब आप जानते हैं कि सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस किस चीज को कहा गया है, फिर सेक्शन 65 में किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, और सेक्शन 66 में नोटिस की बात है, ठीक है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने अलग शब्दों में कहा। कंटिन्यूइंग फर्दर इन जगमेल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट वेंट वन स्टेप अहेड while quoting its old law of H. Siddique versus A. Ramalingam, and reiterated the position that where the original documents are not produced without a plausible reason and a factual foundation for laying secondary evidence is not established, then it is not permissible for the court to allow a party to adduce secondary evidence. फिर H. Siddique में क्या पोजीशन थी? H. Siddique का भी मैं थोड़ा आपको बात कर लेता हूँ। H. Siddique वर्सेस A. Ramalingam, इसने जो सेकेंडरी एविडेंस और फाउंडेशनल एविडेंस की बात की थी वो एक्चुअली इनका लॉ नहीं था। ये जो जजमेंट था वो रोमन कैथोलिक मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट पे बेस्ड था, ठीक है, एज फार एज द सेकेंडरी एविडेंस पॉइंट इज कंसर्न, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है एंड इट इज स्टिल रूलिंग द लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर आपको कभी भी मेंशन करना हो कि किसने वो पोजीशन ऑथोरिटेटिवली हेल्ड की, तो केस का नाम है रोमन कैथोलिक मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, पर उसमें बहुत सारे एलाइड इश्यूज भी थे, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। उसका बस क्रक्स समझ लीजिए। उसका क्रक्स अगर आपको समझना है तो H. Siddique वर्सेस A. Ramalingam इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड लेट मी रीड यू द पॉइंट ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू सेक्शन 65। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट, एविडेंस एक्ट, प्रोवाइड फॉर परमिटिंग पार्टीज टू अड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। हाउएवर सच अ कोर्स इज सब्जेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन in cases where the original documents are not produced at any time, any factual foundation has been laid for secondary evidence, then it is not permissible for the court to allow a party to adduce secondary evidence. Thus, secondary evidence relating to contents of the document is inadmissible until the non-production of the original is accounted for, as to bring it within one or the other cases provided for in the section. The secondary evidence must be authenticated by foundational evidence that the alleged copy is in fact a true copy of the original. ये क्या कहते हैं, ये position of law है। Then going further, the Supreme Court says that mere admission of a document in evidence does not amount to its proof. Therefore, the documentary evidence is required to be proved in accordance with law. The court has an obligation to decide the question of admissibility of a document in secondary evidence before making an endorsement thereon. इस ऑब्जर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट entirely relied on the judgment of Roman Catholic Mission versus State of Madras. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि there is something called factual foundation that has to be laid before the secondary evidence can even be admitted, ठीक है। अब आपको एक और कंसेप्ट और प्रिंसिपल दिमाग में रखना है, बहुत जरूरी है आप ये याद रखें। Admissibility of a document is one thing and its probative value is another thing. In simple terms, probative value is a capacity of something, some material document or a witness to prove something, ठीक है, किसी चीज को साबित करने में। तो admissibility और probative value को confuse मत कर लीजिएगा। Merely because a document has been admitted, it doesn't amount to its proof. ये लाइन बहुत यूज होती है कोर्ट में और जजमेंट में। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट जब एडमिट कर लिया एविडेंस में, दैट डजंट मीन कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट साबित हो गए। एडमिशन ऑफ एन एविडेंस इज वन थिंग, इट्स प्रोबेटिव वैल्यू क्वाइट अनदर। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया एविडेंस में बट उसकी प्रोबेटिव वैल्यू जीरो, उस डॉक्यूमेंट का ट्रायल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। अब एक चीज होती है परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस। फाउंडेशन पे तो मैंने बात कर ली, परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। अब देखिए, जब ट्रायल कोर्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट को पहले एक एप्लीकेशन देते हैं कि
मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमिट करें कि मैं सेकेंडरी एविडेंस लीड करूं, ठीक है। ये ऑर्डिनरली होता है, ऑर्डिनरली इट हैपेंस, बट कभी कभी क्या होता है, कई केसेस में अ परमिशन इज नॉट टेकन। तो इस पे इशू ये है कि अगर एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीव सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट फाइल्ड, तो क्या सेकेंडरी एविडेंस एडमिट नहीं किया जा सकता, ये सवाल है। अब इसके आंसर को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पार्टी टू द डिस्प्यूट ने अगर फैक्चुअल फाउंडेशन ऑफ लीडिंग सेकेंडरी एविडेंस अपनी प्लेंट में या अपने एविडेंस में लीड कर दी है, तो सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ इस बात पे आउस्ट नहीं किया जा सकता कि एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस हैज नॉट बीन फाइल्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीव सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट मैंडेटरी, ये बात याद रखिएगा। ये सवाल एज इट इज आया था और सबने गलत किया था, बिकॉज एवरीबडी कंफ्यूज्ड परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस with the fact of laying foundational evidence to lead secondary evidence. वो दोनों अलग अलग चीजें। On this point, you can always quote the case law of Dhanpat versus Shioram. The case has been decided on 19th March 2020. However, let me tell you that it is not laying down some new position of law. It is just reiterating the very old position of law. तो इस context में 65C की बात थी कि प्लेंटिफ कह रहा था कि द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ये उसका मेन ग्राउंड था। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट एन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 65C ऑफ द एविडेंस एक्ट बिफोर द सेकेंडरी एविडेंस इज लेड। अ पार्टी टू द लिस्ट मतलब litigation, a party to the list may choose to file an application which is required to be considered by the trial court, but if any party to the suit has laid the foundation of leading secondary evidence either in plaint or in evidence, the secondary evidence cannot be ousted for consideration, cannot be ousted from consideration only because an application for permission to lead secondary evidence has not been filed. कोर्ट सिंपली ये कह रहा है कि अगर आपने फाउंडेशनल एविडेंस इस बात पे लीड कर दिया है सेकेंडरी एविडेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए, चाहे प्लेंट में किया हो, चाहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल थ्रू योर अदर एविडेंस किया हो, तो उस बात पे आपका सेकेंडरी एविडेंस रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस हैज नॉट बीन फाइल्ड। ये यूनानिमस व्यू है सारे कोर्ट्स का, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रायल कोर्ट ही अक्सर इसमें गलती करता है, बट हाई कोर्ट्स आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इज क्लियर ऑन दिस पॉइंट। तो ये याद रखिएगा। अक्सर ये इशू विल के केसेस में आता है। ये धनपत वर्सेस शिवराम में भी विल का ही केस था। द डॉक्यूमेंट्स ऑट टू बी प्रूव्ड, और जिसको बोल रहे थे ना, जिसका सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते थे, वो बता रहे थे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल विल है, वो खो गई है। अब इन लोगों ने परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस फाइल नहीं किया ट्रायल कोर्ट के सामने, तो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सेकेंडरी एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, जो एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज मैंडेटरी इज लेइंग ऑफ फाउंडेशन टू लीड द सेकेंडरी एविडेंस आइदर इन प्लेंट और इन एविडेंस, चाहे आप प्लेंट में करिए चाहे आप एविडेंस में करिए। तो इन कंसेप्ट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। एक मैंडेटरी है, लेइंग द फाउंडेशनल एविडेंस इज मैंडेटरी, एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीव सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन ले कर दी है टू इंट्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस, चाहे प्लेंट में हो चाहे एविडेंस में की हो, देन आपका सेकेंडरी एविडेंस रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑन दिस ग्राउंड कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस हैज नॉट बीन फाइल्ड। अब एक चीज बताता हूं कि मेयरली अ डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड, और ये एडमिट कर लेती है कोई पार्टी कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स भी प्रूव हो गए। ठीक है, उनको प्रूव करना पड़ता है। इस पे मैं वापस ले आता हूं आपको एच सिद्दीक वर्सेस ए रामालिंगम के केस पे। इसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। इसमें ट्रायल कोर्ट ने जो सूट डिक्री किया था वो किस पॉइंट पे किया था, वो इस पॉइंट पे किया था कि जो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो दोनों पार्टीज ने कहा दैट इट इज नॉट इन देयर पोजेशन, सो द क्वेश्चन ऑफ लेइंग फर्दर फैक्चुअल फाउंडेशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस अराइज नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने एक और चीज गौर की कि जो रिस्पोंडेंट था मिस्टर ए रामालिंगम, उन्होंने
ये स्पेसिफिकली डिनाई किया कि उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की थी टू ऑथोराइज हिज ब्रदर टू एलियनेट द सूट प्रॉपर्टी। पर इस स्पेसिफिक डिनायल को ट्रायल कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। क्यों सेट असाइड कर दिया? क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने देखा कि जब फोटोकॉपी ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी वॉज शोन टू द रिस्पोंडेंट उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो जब उनसे यह पूछा गया कि इस फोटोकॉपी पे जिसका सिग्नेचर है वो आपका है, तो उन्होंने एडमिट किया। तो इस बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने ये इन्फर कर लिया कि जो कॉपी अगर पावर ऑफ अटर्नी की है, ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी की है, तो रिस्पोंडेंट ने एग्जीक्यूट ही की होगी अपने ब्रदर के फेवर में। तो अगर उन्होंने सिग्नेचर एडमिट कर लिया, इसका मतलब उन्होंने ऑथराइज किया होगा टू एलियनेट दैट प्रॉपर्टी। अभी एलियनेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये वहाँ पे जाता है, थोड़ा हिंदू लॉ में जाता है, तो जस्ट बेयर विद मी। हिंदू लॉ की जरा वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये बस इतना मानना है कि एलियनेशन का मतलब है कि उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी। कहने की ये कोशिश हो रही है कि रिस्पोंडेंट कह रहा है कि मैंने ऑथराइज नहीं किया। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे एच सिद्दीक के, वो तो बोलेंगे कि भाई ऑथराइज किया गया था। फिर एट द एंड ऑफ अ डे जब रिस्पोंडेंट ने डिनाई किया कि मैंने ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी में इनको ऑथराइज नहीं किया था, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जब उनसे अपोजिंग काउंसिल ने पूछा कि ये जो सिग्नेचर हैं, ये फोटोकॉपी ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी पे, ये किसके हैं, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे हैं। उन्होंने सिग्नेचर एडमिट कर लिया। तो इस ग्राउंड पे ट्रायल कोर्ट ने बोला कि इट इज एविडेंट दैट द रिस्पोंडेंट हैज ऑथराइज्ड द सेकेंड डिफेंडेंट टू एलियनेट द सूट प्रॉपर्टी। ठीक है, कि मतलब उनको ऑथराइजेशन दिया गया था, ब्रदर को ऑथराइजेशन दिया गया था टू एलियनेट द सूट प्रॉपर्टी। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि in our humble opinion the trial court could not proceed in such an unwarranted manner for the reason that the respondent had merely admitted his signature on the photocopy of the power of attorney and did not admit the contents thereof। रिस्पोंडेंट जो था एच सिद्दीक वर्सेस ए रामलिंगम में, मतलब ए रामलिंगम रिस्पोंडेंट हुए, he admitted his signature but not the contents of the document। More so, courts should have borne in mind that the admissibility of the documents or contents thereof may not necessarily lead to drawing any inference unless the contents have some probative value। तो कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि मेयरली डॉक्यूमेंट अगर एडमिट हो जाता है तो इसका मतलब एडमिट हो जाता है एविडेंस में, इसका मतलब ये नहीं उसकी प्रोबेटिव वैल्यू है। सेकेंडली, अगर एक पार्टी ये एडमिट कर रही है कि मेरा सिग्नेचर था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट भी एडमिट कर लिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सिग्नेचर फ्रॉड से लिया हो, सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे लिया हो, सिग्नेचर कई तरीके से लिया हो। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि merely because a party has signed a document it means it has admitted all of the contents that are within the document। ठीक है, वो contents भी अपने तरीके से प्रूव करने पड़ते हैं, उनकी एक प्रोबेटिव वैल्यू होती है जो कोर्ट डिटरमाइन करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे क्योंकि इसमें सिविल लॉ आ जाता है, बट ये है नहीं कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी। सिंपली अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो आपका आंसर प्रैक्टिकल का भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन इन पॉइंट से हटे तो गलत हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि मेयरली बिकॉज रिस्पोंडेंट ने अपने सिग्नेचर एडमिट कर लिए ऑन द फोटोकॉपी ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कॉन्टेंट्स ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी एडमिट कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ फिर कोर्ट ने बोला कि ट्रायल कोर्ट शुड हैव borne in mind that the admissibility of a document or contents may not necessarily lead to drawing any inference unless the contents have some probative value। अब आपको एक केस का और इलस्ट्रेशन देता हूँ, यहाँ पे एकदम थोड़ा अलग टेंजेंट से हट के जा रहा हूँ, जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस एडमिट किया गया इवन दो नो एप्लीकेशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस वॉज फाइल्ड। ये केस है अहिर रामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब इस केस में the secondary evidence of a dying declaration recorded by the magistrate was produced in evidence। Apex court found that though the original dying declaration was not produced, but from evidence it was clear that the original was lost and was not available।
The magistrate himself deposed on oath that he had given the original dying declaration to the head constable, whereas the head constable deposed that he made a copy of the same and given it back to the magistrate. तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड करके हेड कांस्टेबल को दिया, हेड कांस्टेबल ने बोला कि मैंने उसी डाइंग डिक्लेरेशन की कॉपी बनाई एंड आई गेव इट टू द मैजिस्ट्रेट. Therefore, Apex Court found that the original dying declaration was not available and the prosecution was entitled to lead secondary evidence which consisted of the statement of the magistrate and also of the head constable who made a copy from the original. Thus, in this case, secondary evidence of the dying declaration was admitted in evidence even though no application to lead the secondary evidence was filed. अब ये सवाल आता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट को कौन सी स्टेज पे डिसाइड किया जाता है. इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिपिन शांतिलाल पंचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में. सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट्स की प्रैक्टिस थी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ मटेरियल एविडेंस, जहाँ पे कोर्ट क्या करता था कि वो आगे ही नहीं बढ़ता था कि अगर ऑपोजिट पार्टी या एडवर्स पार्टी ने मान लीजिए किसी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हो जाता था तब तक ट्रायल कोर्ट आगे नहीं बढ़ता था. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को डेप्रिकेट किया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रैक्टिस का बेटर सब्स्टिट्यूट ये होगा कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड ड्यूरिंग द एविडेंस टेकिंग स्टेज regarding the admissibility of any material or item of oral evidence, the trial court can make note of such objection and mark the objected document tentatively as an exhibit in the case, or record the objected part of the oral evidence subject to such objection to be decided at the last stage in the final judgment. If the court finds at the final stage that the objection so raised is sustained, the judge or magistrate can keep such evidence excluded from consideration. In our view, there is no illegality in adopting such a course. इन बातों का सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि स्टैंप ड्यूटी की डेफिशिएंसी का अगर कोई बात आती है तो कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा विदाउट प्रोसीडिंग फर्दर. मतलब जब तक उसका ऑब्जेक्शन नहीं डिसाइड हो जाता कि स्टैंप ड्यूटी पे हुई है या नहीं, क्योंकि कोर्ट इज बाउंड टू इम्पाउंड सच डॉक्यूमेंट्स इन द व्यू ऑफ स्टैंप एक्ट. स्टैंप एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे स्टैंप ड्यूटी लगती है और वो स्टैम्प्ड नहीं है, ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, तो कोर्ट इज बाउंड टू इम्पाउंड इट. तो इस प्रिंसिपल का सिर्फ स्टैंप एक्ट एक्सेप्शन है और कुछ नहीं. तो कोर्ट ने बोला कि जितने भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट के रिलेशन में हो, दैट हैज टू बी डिसाइडेड एट व्हाट स्टेज, दैट हैज टू बी डिसाइडेड एट द फाइनल स्टेज. इसका एक एडवांटेज कोर्ट ने बताया कि इसकी दो एडवांटेज होती हैं. फर्स्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ द ट्रायल ड्यूरिंग एविडेंस टेकिंग स्टेज it would not be wasted on the account of raising such objection and the court can continue to examine the witness. Then the witness need not wait for long hours, if not days. Second is that superior court, when the same objection is recanvassed and reconsidered in appeal or revision against the final judgment of the trial court, can determine the correctness of the view taken by trial court regarding that objection without bothering to remit the case to the trial court again for the fresh disposal. तो कोर्ट का कहना था कि ऐसे विटनेसेस जो हैं उनको एग्जामिन करने में कोई ब्रेक नहीं आएगा और लगातार कोर्ट एग्जामिन कर सकता है विदाउट एनी डिले. सेकेंडली, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन गलत तरीके से डिसाइड भी कर दिया ट्रायल कोर्ट ने एट द फाइनल स्टेज, तो जब भी आप अपील और रिवीजन पे जाएंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो अपील और रिवीजन का कोर्ट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो व्यू लिया है वो सही लिया है या नहीं. और ऐसे केस में रेमिशन फॉर द केस ऑफ फ्रेश डिस्पोजल की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि उससे क्या है ना, ट्रायल और प्रोट्रैक्ट हो जाता है और लंबा हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में इट इज बेस्ट कि जितने भी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस आर टेकन, दैट हैज टू बी डिसाइडेड एट द फाइनल स्टेज. अब एक केस है यू श्री वर्सेस यू श्रीनिवास, डिसाइडेड ऑन 11 दिसंबर 2012. अब इसमें कुछ इशू थे डिजर्शन और मेंटल क्रुएलिटी के, और एक फोटोस्टैट कॉपी वाज पुट इन एविडेंस एज अ सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि ओरिजिनल लेटर था वो अवेलेबल नहीं था. और वाइफ ने अपने फादर को एक लेटर लिखा था, उसकी एक फोटो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस की तरह कोर्ट में
प्रस्तुत की गई थी। अब ये केस अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज़ कोर्ट ने डिस्कस की थी टू कम टू द कंक्लूजन कि सेकेंडरी एविडेंस को आप कैसे लीड करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था, फैमिली कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी ओपाइन किया कि व्हेन अ पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बट हैज नॉट प्रोड्यूस द सेम, देन इट कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर फाउंडेशन टू लीव द सेकेंडरी एविडेंस। अगर मान लीजिए आप अपोजिट पार्टी हैं और एक डॉक्यूमेंट मैं चाहता हूँ कोर्ट में प्रूव हो, जो आप जानते हैं अगर कोर्ट में चला जाएगा तो आप ही के खिलाफ केस हो जाएगा, तो आप तो उसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूँ। तो इस केस में फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने ओपाइन किया कि व्हेन द पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बट हैज नॉट प्रोड्यूस द सेम, देन इट कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर फाउंडेशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, जैसा कि आप सेक्शन 65 में पाते हो। इसके लिए कोर्ट ने वंस अगेन लुक्ड एट अशोक धुलीचंद वर्सेस माधवलाल दुबे, जिसमें वही फैक्चुअल फाउंडेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, नेक्स्ट केस दैट द सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड वाज जे यशोदा वर्सेस के शोभा रानी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंग्वेज थी सेक्शन 63 और 65A में, उसको एनालाइज किया और बोला कि सेक्शन 65 परमिट सेकेंडरी एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंटेंट्स and condition of the documents under the circumstances mentioned therein. The condition laid down in the section must be fulfilled before the secondary evidence can be admitted. Secondary evidence of the contents of the document cannot be admitted without non-production of the original being first accounted for in such a manner to bring it within one or the other cases provided for in the section. ये कौन से section की बात कर रहे हैं? Section 65 की बात कर रहे हैं। Next case that the Supreme Court referred to is M. Chandra versus M. Thangamuthu, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही ऑब्जर्वेशन किया, इट इज ट्रू दैट द पार्टी हु विशेस टू रिलाई अपॉन द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट must reduce primary evidence of the contents and only in exceptional cases will the secondary evidence be admissible. However, if secondary evidence is admissible, it must be adduced in any form in which it may be available, whether by a production of a copy, duplicate of a copy, or by oral evidence of the contents or in another form. The secondary evidence must be authenticated by foundational evidence that the alleged copy is in fact the true copy of the original. It should be emphasized that the exceptions to the rule requiring primary evidence are designed to provide relief in a case where the party is genuinely unable to produce the original through no fault of that party. फिर नेक्स्ट केस जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे रेफर किया था वो था एच सिद्दीक वर्सेस ए रामलिंगम। अब इसकी तो बात मैं कर चुका हूँ। एच सिद्दीक ने रोमन कैथोलिक चर्च वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास पर रिलाई किया था, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। इन जजमेंट्स को डिस्कस करने के बाद अब उस फोटोकॉपी लेटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये बोला कि ना ही फैमिली जज ने ना ही हाई कोर्ट ने लेटर को लेके किसी भी फाउंडेशनल एविडेंस की बात की। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि फाउंडेशनल एविडेंस के कोई ग्राउंड ही नहीं रखे कि भाई फोटोकॉपी जो लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है, उसका फाउंडेशनल एविडेंस क्या है, उसका 65 में कौन से केस में फॉल कर रहा है और क्यों फॉल कर रहा है, अब यही बता नहीं पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइंडिंग्स थी फैमिली जज की और हाई कोर्ट की, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशनल एविडेंस को लेके किसी भी हाल में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए उनकी फाइंडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि इन केस एट हैंड द लर्नेड फैमिली जज हैज रियली नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग रिलेटिंग टू फाउंडेशनल एविडेंस। द हाई कोर्ट हैज ओनली मेंशन्ड दैट व्हेन द लेटर वाज समन्ड एंड देयर वाज अ डिनायल, द सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। In our considered opinion, such a view is neither legally sound nor in consonance with the pronouncement of this court, and accordingly we have no hesitation in dislodging the finding on that score. इन सिचुएशन में आपको प्रोनाउंसमेंट क्या आर्ग्यूमेंट लिया गया और कोर्ट ने किस फाइंडिंग को कैसे डिसाइड किया, ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि आपको ये समझ में आए कि सेक्शन चल कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। बिकॉज merely the position of law, knowing the position of law is not enough. Merely if you know the position of law, that is not enough. It is imperative for you to know that how to apply that law. Application of that law is the most important practical skill to learn in the legal field. Application आ गया तो आप लगभग हर चीज़ हैंडल कर लेंगे, प्रैक्टिस, जुडिशरी एग्जामिनेशन, सब कुछ। अब ये है कि
कुछ स्टेट्स के लिए आपको अपनी नॉलेज थोड़ी सीमित करनी पड़ेगी, कुछ स्टेट्स के लिए आपको अपनी जुडिशियल नॉलेज थोड़ी एक्सपैंड करनी पड़ेगी। अब एक लास्ट प्रैक्टिकल नुआंस से डील करता हूँ। देखिए बड़े बेसिक नुआंसेस हैं, मैं कोई ऐसा आपको पॉइंट नहीं बता रहा जो बहुत ही हायर एक्लियंस ऑफ लॉ में फॉलो होता है कि व्हेन यू बिलोंग टू अ वेरी हाई एक्लियंस इन लीगल एलीट सर्कल्स तभी वो अप्लाई होगा। नो, दैट इज़ नॉट द केस। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और इसी की वजह से अगर इनका इग्नोरेंस हुआ तो अ पर्सन इज़ अनएबल टू प्रैक्टिस लॉ एंड ही इज़ ऑल्सो अनएबल टू अंडरस्टैंड द लॉ। इसीलिए ये सारी चीज़ें समझानी और ये नुआंसेस समझाना ज़रूरी है। अब जो लास्ट नुआंस है, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब मान लीजिए अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो अगर एडमिसिबल होता है, मान लीजिए लॉ में कहीं प्रोहिबिशन नहीं है और वो एग्जिबिट मार्क हो गया, तो अगर कोई पार्टी उसे ऑब्जेक्ट नहीं करती है फॉर दैट डॉक्यूमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड सेम इज मार्क एज एन एग्जिबिट, देन सच पार्टी इज स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एडमिसिबिलिटी एट अ लेटर स्टेज। ऑब्जेक्शन अगर नहीं लिया कि अगर डॉक्यूमेंट हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड इट इज मार्क्ड एज एन एग्जिबिट, तो ऐसे में अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो एक एस्टॉपल लग जाता है उसके ऊपर कि वो एडमिसिबिलिटी क्वेश्चन नहीं करेगा। वो क्रेडिबिलिटी प्रोबेटिव वैल्यू की धज्जियां उड़ा दे, प्रूफ को लेके उड़ा दे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट एडमिसिबिलिटी को लेके एक एस्टॉपल माना जाता है। लेकिन क्या सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है तब कि मान लीजिए कोर्ट एक इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट एविडेंस में ले ले, वो डॉक्यूमेंट इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस एंड कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे ले ले, एग्जिबिट मार्क कर दे, और ऐसी चीज में ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या द ऑपोजिट पार्टी वुड बी स्टॉप्ड? द आंसर इज नो, एंड लेट मी कोट द ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पॉइंट of the Supreme Court in Malay Kumar Ganguly versus Sukumar Mukherjee, decided on 7th August 2009. Supreme Court said that it is true that ordinarily if a party to an action does not object to the document being taken on record and the same is marked as an exhibit, he is stopped from questioning the admissibility thereof at a later stage. It is however trite that the documents become inadmissible in evidence unless the author thereof is examined and the contents thereof cannot be held to have been proved unless he is examined and subject to cross-examination in a court of law. The document which is otherwise inadmissible cannot be taken in evidence only because no objection to its admissibility thereof was taken. यहाँ पे आपकी बात आंसर हो जाती है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। अगर कोई डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है तो आप उसे एविडेंस में नहीं ले सकते मेरली बिकॉज ऑन दिस पॉइंट की एडवर्स पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया रिगार्डिंग इट्स एडमिसिबिलिटी। सो आई होप कि ये जनरल पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ये हैं छोटे छोटे पॉइंट्स कि अगर आपने इस पॉइंट्स को एज इट इज़ ध्यान में रखा तो यू कैन नॉट मेक एन एरर रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, secondary evidence of the contents of the document cannot be admitted without the production of the original being first accounted for in such a manner as to bring it within one or the other cases as is mentioned under section 65. अब आपको एक illustration देता हूँ कि जो section 65 में लिखा है कि original is in the possession or power of the opposite party। तो possession तो आप literally समझते हैं, मैं कल भी बता चुका हूँ कि आपके physical possession में। power का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आप एक टेनेंट हैं और लैंडलॉर्ड के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है। अब जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो लैंडलॉर्ड की पोजीशन में है और आपके पास सिर्फ फोटो कॉपी है उसकी ओरिजिनल एग्रीमेंट की। अब मान लीजिए लैंडलॉर्ड का कोई स्पेसिफिक एजेंट है, मान लीजिए उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है और वो एक स्पेसिफिक एजेंट को जितने भी लोगों के साथ उसका ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट हुआ है वो उनके पास रखने को देता है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आप उसके एजेंट से ओरिजिनल कॉपी निकालना चाहें इन ऑर्डर टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट इनसाइड अ कोर्ट थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, तो उस सिचुएशन में एजेंट आपको देगा नहीं। क्यों? क्योंकि द डॉक्यूमेंट इज इन द पावर ऑफ द लैंडलॉर्ड। क्योंकि जब तक लैंडलॉर्ड उसे ऑर्डर नहीं करेगा एजेंट को कि वो आपको दे दे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एग्रीमेंट, तब तक वो आपको देगा नहीं।
तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन द पावर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड हेंस आई शुड बी अलाउड टू लीड सेकेंडरी एविडेंस रिगार्डिंग द रेंट अग्रीमेंट. ठीक है. फिर एक पॉइंट आता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट वाला. तो अब डिस्ट्रॉयड का मतलब लिटरली मतलब ये ना निकाल लीजिएगा कि इट शुड बी एनाइलेटेड. If let us suppose that the majority of the document has been destroyed by the elemental forces, थोड़ा सा ही document बचा है. ठीक है. Majority of the document has been destroyed by the elemental forces or the natural forces, या काफ़ी ऐसी कंडीशन में हो गया है कि उसका जो मेजर पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ एक वेस्टिजल पोर्शंस बचे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन लीड सेकेंडरी एविडेंस, उसमें कोई बार नहीं है. डिस्ट्रक्शन का मतलब अनाइलेशन मत रख लीजिएगा कि 100% डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक भी एटम नहीं बचना चाहिए इस डॉक्यूमेंट का. ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये पॉइंट मुझे आपके लिए बताना ज़रूरी था. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो लॉस्ट शब्द यूज हुआ है इसका क्या मतलब है. क्या लॉस्ट को आप नॉन ट्रेसेबल का सिनोनिमस मान सकते हैं? तो देखिए शॉर्ट आंसर है कि हाँ मान सकते हैं. लॉस्ट जो शब्द है इट वुड इंक्लूड द टर्म if the party were to say that the document is not traceable, हमारी नॉलेज में नहीं है, इसके लिए उसे एक डिलीजेंट सर्च करनी पड़ती है. ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी बोलेंगे द डॉक्यूमेंट इज नॉट ट्रेसेबल और लॉस्ट, एक थोड़ा सा एक फाउंडेशन इस बात का भी देना पड़ता है कि आपने डिलीजेंटली सर्च किया है उस डॉक्यूमेंट को लेके. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ कि ये नॉट ट्रेसेबल और लॉस्ट सिनोनिमस है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं कोर्ट के सामने. और इस पे केस था, एक दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केस आया था, श्री प्रेमचंद्र जैन वर्सेस श्री राम, डिसाइडेड ऑन 12 अक्टूबर 2009. अब इसमें जो पार्टी थी उसने बोला द डॉक्यूमेंट इज नॉट ट्रेसेबल. तो ऑपोजिंग काउंसिल ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि नॉट ट्रेसेबल डज नॉट मीन लॉस्ट. तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझाया कि जब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन आती है फॉर सीकिंग द परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, तो अगर उसमें रीजंस दिए जाते हैं जैसे कि सेक्शन 65 में बताए गए हैं, तो कोर्ट जो है उन रीजंस की करेक्टनेस पे नहीं जाएगा, उनकी करेक्टनेस को नहीं डिसाइड करेगा. क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट नेसेसरी. और अगर ली भी जाती है, एप्लीकेशन दी भी जाती है ट्रायल कोर्ट को, तो ऐसी भी सिचुएशन में द कोर्ट विल नॉट टेक अ डिसीजन एज टू करेक्टनेस ऑफ द रीजंस जो भी बताए गए हैं. तो एप्लीकेशन का जो पर्पस होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता एक्सेप्ट दैट इट डिलेज प्रोसीडिंग. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज ऑफन फाउंड दैट द कोर्ट्स अलाउ और डिसअलाउ द एप्लीकेशन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्टी फॉर लेइंग द फाउंडेशनल एविडेंस फॉर द रिसेप्शन और द रिजेक्शन ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस. कोर्ट ने बोला सच अ प्रोसीजर इज इम्परमिसिबल इन लॉ. फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड ऑन द एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन की स्टेज पे फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सी डिसाइड नहीं करते. फिर दिल्ली हाई कोर्ट reiterated the same position of law and says that the party seeking to prove document by secondary evidence is to lead evidence of the existence of the circumstances situation in which secondary evidence is permissible during leading its evidence, whether by the way of examination of witnesses or cross examination of the opponent's witness in the suit or other proceeding itself. It would be decided at the stage of disposal of the suit only, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था at the final stage, whether the case for leading secondary evidence has been made out or not, and if so whether the document stands proved by secondary evidence. है ना. तो ये फाइनल स्टेज पे ऑब्जेक्शन डिसाइड होते हैं, नॉट एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ. इसी पॉइंट पे एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का भी केस था, वो एज एन इलस्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ, पीके गुप्ता वर्सेस वरिंदर शर्मा. अब इसमें रिकवरी ऑफ मनी को लेके एक फोटोस्टैट कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट वाज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, और ओरिजिनल क्या कहते हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वो फाइल नहीं किया गया था, सिर्फ फोटोस्टैट कॉपी फाइल की गई थी एग्रीमेंट की. ऐसी सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट ने समैरली डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन merely because the defendant said that the photocopy was produced deliberately to suppress the fact that the agreement was fabricated. अब plaintiff ये कहता रह गया कोर्ट के सामने कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो डिफेंडेंट की कस्टडी में है और डिफेंडेंट उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पर ट्रायल कोर्ट ने समैरली डिसमिस कर दी प्लेंटिफ की एप्लीकेशन.
ऐसी सिचुएशन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अगेन रोमन कैथोलिक मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास को कोट करते हुए एंड ऑल्सो आफ्टर रेफरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स सीधे बोला कि ऐसा समरी वे में जो डिस्पोजल है ये एकदम गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेज पे ही आपने रीजंस डिसाइड कर डाले, दैट इज इनकरेक्ट अप्रोच. सो इन दिस केस जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट जस्ट जम्प टू द कंक्लूजन दैट द डॉक्यूमेंट वाज फैब्रिकेटेड और एप्लीकेशन की स्टेज पर रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, दिस attitude of the trial court was deprecated by the High Court as well, and that was by placing reliance on the judgments of the Supreme Court. So I hope आप ये टेक्निकल पॉइंट समझ गए होंगे. अब देखिए कई स्टेट्स में आपको सिर्फ सेक्शन याद रख के काम चल जाएगा, पर कई स्टेट्स में पूरे नुआंसेस भी पूछे जा सकते हैं, खासतौर से दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में पूछे जा सकते हैं. सो इफ़ यू प्लान ऑन अपीयरिंग इन दीज स्टेट्स, और अब बाकी के जो स्टेट्स हैं वो भी अपने एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को लेके अभी से अवेयर रहिए, क्योंकि अवेयरनेस नेवर हर्ट्स. ये प्रैक्टिस के पर्पस से भी आपके लिए रेलेवेंट है, एग्ज़ाम के पर्पस से भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये कोई एडवांस पॉइंट नहीं है, इट इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब यही चीज़ लोग समझते नहीं हैं एंड दैट लीड्स टू कन्फ्यूजन. फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए फॉर सम रीज़न अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खुद ही में इनएडमिसिबल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ फॉर वन रीज़न और दी अदर इनएडमिसिबल ड्यू टू द रीज़न दैट इट वाज नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प्ड और इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एसेट्रा एज द लॉ रिक्वायर्स, तो उस सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी लेड. लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एडमिसिबिलिटी का जो ऑब्जेक्शन है वो कहाँ लिया जाएगा, लास्ट स्टेज पे, एप्लीकेशन की स्टेज पे नहीं. कोर्ट फिर भी क्या करेगा कि फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑब्जेक्शन के साथ डॉक्यूमेंट को देखेगा ज़रूर, है ना, जब का स्टैम्प एक्ट में ना जा रहा हो, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, उसका ऑब्जेक्शन पहले डिसाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज इन एवरी अदर केस ऑब्जेक्शन लास्ट में डिसाइड होता है एट द फाइनल स्टेज ऑफ द सूट. तो मान लीजिए फाइनल स्टेज ऑफ द सूट पे कोर्ट पाता है कि ओरिजिनल खुद इनएडमिसिबल होता अगर प्रोड्यूस किया जाता, तो ऐसी स्टेज में जो सेकेंडरी एविडेंस लाया गया है बीट बाय एनी पार्टी दैट आल्सो कैन नॉट बी टेकन इन एविडेंस. तो ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, इसको भी लेके ध्यान में रखिएगा. अब ये कि सेक्शन 66 में जो नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट है, ये कौन सी तरीके की नोटिस हैं? जो ऑर्डर 11 रूल 15 ऑफ द सीपीसी में जो नोटिस है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर आप ये सूट के कंटेक्स्ट में समझिए तो समझना आसान होगा. तो ऑर्डर 11 रूल 15 ऑफ द सीपीसी में जिस नोटिस की बात की गई है ये उसी नोटिस को रेफर कर रहा है. ऑर्डर 11 रूल 15 ऑफ सीपीसी सेज that every party to the suit shall be entitled at any time to give notice to any other party in whose pleadings or affidavits reference is made to any document or who has entered any document in any list annexed to his pleadings or produce such document for the inspection of the party giving such notice or his pleader and to permit him or them to take copies thereof, and any party not complying with such notice shall not afterwards be at liberty to put such document in evidence on his behalf in such suit unless he shall satisfy the court that the document relates only to his own title, he being a defendant to the suit, or that he had some other cause or excuse which the court shall deem sufficient for not complying with such notice, in which case the court may allow the same to be put in evidence on such terms as to cost or otherwise as the court shall think fit. मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीआरपीसी और सीपीसी में ओवरलैपिंग होती है एविडेंस की. इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उसको लेके अपना माइंड ओपन रखें, कभी भी लॉ को कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच में ना पढ़ें. अब ज़रा आ जाते हैं सेक्शन 67 पे. सिंपल सी इतनी सी बात करता है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज alleged टू बी साइंड और हैव टू बी रिटन ओनली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, द सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ऑफ सच of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be his handwriting. ये 67 रिक्वायर करता है. तो सेक्शन क्या कह रहा है आपसे? दिस सेक्शन merely requires the proof of the signature and the handwriting of the person who is alleged to have signed or written the document produced. सेक्शन 67 और 68 को लेके हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा अगर आप दिल्ली में अपेयर कर रहे हैं तो. बहुत आते हैं, बड़े सिंपल आते हैं. अगर आपको सेक्शन 67 और 68 ध्यान में है तो आपका आंसर हमेशा ढंग से सॉल्व होगा.
सेक्शन 67 आपसे मेयरली क्या रिक्वायर कर रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर है या कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन की हैंडराइटिंग में लिखा गया है, तो ये साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये सिग्नेचर उस पर्सन का है जिसका आप बता रहे हैं, या है ये हैंडराइटिंग उसकी है जिसका आप बता रहे हैं. ठीक है, दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड. तो ऐसी सिचुएशन में जिस पर्सन ने साइन किया है वही बता सकता है कि उसका सिग्नेचर था, या जिस पर्सन ने वो चीज़ लिखी है वही बता सकता है कि क्या वो उसी ने लिखी है. ये बेस्ट होता है. लेकिन कई कई सिचुएशन में कभी कभी क्या कोशिश की जाती है कि थर्ड पर्सन को बुलाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज़ अ हैंड राइटिंग और सिग्नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे जिस पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या साइन किया है और उसका सिग्नेचर और हैंड राइटिंग किसी थर्ड पर्सन द्वारा प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. ऐसी सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो एक एडवर्स इन्फेरेंस भी बना सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. वैसे एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेयरली बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जो सिग्नेचर है वो आपका है. दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 67. ठीक है. सो द मियर प्रोडक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड डीड इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव इट. The identity of the executant has to be established by oral evidence before the deed can be taken to have been proved. अब विल के केस में क्या होता है, विल इज ऑपरेटिव आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर. तो ऐसे केस में बर्डन लाइज ऑन वूम, बर्डन लाइज ऑन द प्रोपाउंडर टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस, क्योंकि डिसीज टेस्टेटर अब अवेलेबल नहीं हो पाता टू स्पीक अबाउट इट्स जेन्युइननेस. तो ऐसे याद रखिएगा सेक्शन 67 में कि अगर जिसने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या साइन किया है तो जनरली उसी को बुलाया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव कि भाई ये हैंड राइटिंग या सिग्नेचर उस पर्सन का है. इसमें ये बात सफिशिएंट नहीं होती है कि आपने सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रख दिया, उससे ये प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये नहीं कन्फर्म्ड है ना कि वो सिग्नेचर उसी पर्सन का है. अब आप मान लीजिए, आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में एक रजिस्टर्ड डीड प्लेस की जा रही है, अब एक पार्टी कह रही है कि इनका साइन है और दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं मेरा साइन नहीं है, वो डिनाई कर रही है, तो कैन यू से कि डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रूव्ड? नो, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि देखिए मैंने रजिस्टर्ड डीड लगा दी है तो अब ये इन्हीं का साइन है, अब ये कोर्ट मान ले. नहीं, द कोर्ट विल require the proof as it's envisaged by section 67. ठीक है. जनरली इस बात पे एक ओरल एविडेंस कोर्ट लेता है. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 67A में. ये प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है. ये कहता है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed to an electronic record, the fact of such signature is the electronic signature of that subscriber must be proved. अब देखिए, integrity, sanctity and security of the electronic signatures are a big issue because nothing prevents one individual from typing another individual's name. Therefore, if any party who asserts something on the basis of electronic signature of a subscriber has been put under an obligation by section 67A to prove before court that the electronic signature actually belonged to that subscriber, the court is not entitled to take an electronic signature on its face value without having the party harping upon such electronic signature on a document to be proved by cogent evidence. अब वो cogent evidence कैसे लेंगे आप? ये IT Act के प्रोविजन फॉलो करके लेंगे एंड या आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लीजिए बाय अ competent authority. That would also work. But in either scenario it has to be proved by cogent evidence. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 68. ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. सेक्शन 68 सेज इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. देख लीजिए किस सिचुएशन की बात कर रहा है. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को लॉ कहता है कि इसको अटेस्ट करना है, देन इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence. Provided it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of Indian Registration Act.
unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. अब ये सेक्शन आपसे ये कह रहा है कि अगर लॉ किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करवाने के लिए बोलता है तो आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुला के उसको प्रूव करना है. दैट इज व्हाट द लॉ इज सेइंग टू यू. ठीक है. इफ द डॉक्यूमेंट इज required to be attested, at least one attesting witness has to be called. See, the main object in the statutes requiring the attestation is that it has an element of validity to surround the act of an execution. ये स्टैट्यूट्स इंश्योर करना चाहती हैं कि जिस पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट या डीड एग्जीक्यूट की वो वैलिडली एग्जीक्यूट की है, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए लॉ रिक्वायर्स अटेस्टिंग विटनेसेस. और ऑब्जेक्ट इज प्राइमरली नॉट की सिक्योरिंग एविडेंस फॉर लिटिगेशन. प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सिक्योर द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है. सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये है कि टू सिक्योर द एविडेंस फॉर द लिटिगेशन पर्पसेस एट द लेटर स्टेज, अगर होता है तो. अब विल को लेके एक कंसेशन किया है लेजिस्लेचर ने कि देखिए जनरल रूल जान लीजिए विल का, कि विल को प्रूव करना पड़ता है प्रोपाउंडर को बाय द यूज ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस. ओरल एविडेंस से नहीं चलता. दे हैव टू प्रूव, द प्रोपाउंडर हैज टू प्रूव बाय अटेस्टिंग विटनेसेस. लेकिन लेजिस्लेचर ने सेक्शन 68 में बस एक छोटा सा कंसेशन दिया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट विल नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे विल की बात हो रही है तो आप जिससे कंफ्यूज ना कर लें प्रोवाइजो को कि विल पे अप्लाई करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर का पॉइंट समझिए कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें अटेस्टेशन है हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. पहला. दूसरा जो प्रोवाइजो है ये विल पे नहीं अप्लाई करता. ठीक है. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जनरली द प्रोपाउंडर ऑफ द विल हैज टू प्रूव अ विल बाय लीडिंग द एविडेंस ऑफ अटेस्टेटिंग विटनेस जिन्होंने उस विल को अटेस्ट किया है. तो याद रखिएगा, प्रोवाइजो डज नॉट अप्लाई ऑन अ विल. वो हर उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करता है जहां पे टेस्टिंग विटनेस है, बट इज हैज बीन रजिस्टर्ड बाय इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, बट इट डज नॉट अप्लाई ऑन अ विल, एंड एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस हैज टू बी कॉल्ड इफ द केस इज ऑफ विल. तो प्रोवाइजो ध्यान रखिएगा विल पे नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा इंडियन सक्सेशन एक्ट का भी मैटर है. अब यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 बड़ा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 63 ऑफ द सक्सेशन एक्ट आपको बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल्स होता कैसे है. वो रिक्वायर करता है सेक्शन 63 ऑफ द सक्सेशन एक्ट कि द टेस्टेटर शैल साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द विल, और इट शैल बी साइंड बाय सम अदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन. द सिग्नेचर ऑफ द मार्क ऑफ द टेस्टेटर और द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन साइनिंग शैल बी प्लेस्ड so that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a will. And thirdly, the will shall be attested by two or more witnesses, each of whom have seen the testator sign or affix his mark. तो देखिए विल होनी है प्रूव ऐसे ही, और अगर आप उसको सेक्शन 68 के साथ रीड करेंगे देन यू नो दैट एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस हैज टू बी कॉल्ड. सेक्शन 68 का प्रोवाइजो विल पे नहीं अप्लाई होता. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, इसलिए सेक्शन को हमेशा ध्यान में रखिएगा. तो अटेस्टेड को जनरल सेंस में लिया जाता है टू मीन दैट अ पर्सन हैज साइंड द डॉक्यूमेंट बाय द वे ऑफ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट ही सॉ इट टू बी एग्जीक्यूटेड. ये जनरल सेंस है. लेकिन मैक्सिम कह रहा हूँ, स्टैट्यूटरी सेंस में इफ यू रिफर टू सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सेक्शन 63 क्लॉज सी ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो अटेस्टेड का सेंस इस सेंस में बोला गया है कि in relation to an instrument it means attested by two or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by direction of the executant, or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or of signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant, but it is not necessary that more than one of such witnesses should be present at the same time, and no particular form of attestation is
नेसेसरी। अब ये मैं बेस कर रहा हूँ सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 63C ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट को टुगेदर रीड करके। अटेस्टेशन समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो मान लीजिए अगर मैं लेटर सपोज एक CLD विल बना रहा हूँ, लेटर सपोज आप लोग मेरे अटेस्टिंग विटनेस बन जाइए। अब लॉ मिनिमम 2 रिक्वायर करता है, मैं आप सबको बना देता हूँ अटेस्टिंग विटनेस। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, मैं अगर साइन कर रहा हूँ देन यू आर अटेस्टिंग कि हाँ मैंने साइन किया था वो विल, ठीक है, यू आर अटेस्टिंग दैट फैक्ट। तो आप अपने आप को जरा अटेस्टिंग विटनेस की कंडीशन में रख के सोचिए। तो आप जब विल को प्रूव करना होगा तो लेटर सपोज आपको बुलाया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट में आपसे जब पूछा जाएगा कि डिड आई, क्या मैंने विल एग्जीक्यूट की थी, आप कहोगे यस वी सॉ हिम एग्जीक्यूट द विल एंड साइन इट इन हिज ओन नेम। या हो सकता है कि मैंने आपको एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दिया हो कि हाँ मैंने विल एग्जीक्यूट की है, अब आप जाके उसे अटेस्ट कर दीजिए। तो आप या तो इसका एविडेंस दोगे, बट यू विल बी एन अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, जो इसमें आपको पता चले कि अटेस्टेशन ज़रूरी है। जैसे विल, इफ यू रिफर टू सेक्शन 57 and 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, अ मॉर्गेज वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज अबव ₹100 इज ₹100 और अपवर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 59 देखिएगा। तीसरा, अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी असिस्टेड। कहाँ पे अटेस्टेशन जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए अ डॉक्यूमेंट इज ऑफ रीकन्वेयंस देन इट वुड नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन। रीकन्वेयंस को फॉर द सेक ऑफ ओवर सिंप्लिसिटी आपके लिए मैं कह देता हूँ, इसका मतलब होता है वापस देना, वापस कन्वे करना। तो जनरली डीड ऑफ रिकन्वेंस कब इशू की जाती है, जब बोरोवर जो है मॉर्गेज के अंदर उसने अपनी मॉर्गेज डेब्ट एक्सटिंग्विश कर दी है। तो जब डीड बनाई जाती है कि आपने अपनी मॉर्गेज डेब्ट एक्सटिंग्विश कर दी और प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वापस बोरोवर के पास चला जाता है, तो उस सिचुएशन में दैट इज कॉल्ड द डीड ऑफ कन्वेयंस, रिकन्वेयंस, सॉरी, द डीड ऑफ रिकन्वेयंस, वापस देना। ये डॉक्यूमेंट तब फॉर्म होता है व्हेन द मॉर्गेज हैज बीन पेड इन फुल, ठीक है। तो डीड ऑफ रिकन्वेयंस को अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो मॉर्गेज डीड है जहां पे प्रिंसिपल मनी ₹100 या उसके ऊपर का है, ऐसी सिचुएशन में उसको अटेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। अब आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 68 का, ये विल पे अप्लाई नहीं करता, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब प्रोवाइजो बेसिकली ये कह रहा है कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है विच इज नॉट अ विल, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट टू रिलैक्स द डिफिकल्टी ऑफ कॉलिंग द अटेस्टिंग विटनेस, द डॉक्यूमेंट इफ इट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड बाय द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड इट, तो उस स्टेज में अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस पर्सन ने मान लीजिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया और रजिस्टर्ड है, उसने स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया कि मैंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, ऐसी स्टेज में आप अटेस्टिंग विटनेस बुला सकते हैं, वहां पे बुलाना ही होगा, ठीक है, इफ सच अटेस्टिंग विटनेस इज अलाइव। और एक ध्यान रखिएगा, जो एग्जीक्यूटर है ना किसी डॉक्यूमेंट का, वो उसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेटर नहीं हो सकता। देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट अटेस्टिंग विटनेस। अभी स्क्राइब भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो हैज सीन द पर्सन एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटर अटेस्टेटर नहीं होता है। एक एडिशनल चीज़ और बता दूं कि इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिटन एंड एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड इन वन इंक, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन, then the presumption of a due attestation is permissible under the maxim omnia presumpter right esse solemniter esse acta donec prohibitor in contrarium। इसका मतलब होता है कि all official acts are presumed to be rightly performed unless you prove it to the contrary। ये तभी presumption arise होता है जब execution of a document and attestation of a document एक ही इंक पे है, तभी ये presumption कोर्ट ले सकता है, ओमनिया प्रेजेंटर वाला, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कहीं पे भी, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब ये जो एग्जीक्यूशन वर्ड है, ये जो एक्सप्रेशन है एग्जीक्यूशन, ये प्रॉपरली इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज इट बीइंग यूज्ड, तो इसको सबसे अच्छे से मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन द केस ऑफ जे मैथ्यू वर्सेस लीला जोसेफ में बताया था। इट वाज रिपोर्टेड इन AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट NOC मद्रास डिवीजन बेंच, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था। उसमें इन्होंने बताया कि द एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन का मियरली मतलब सिर्फ सिग्नेचर नहीं होता,
It also means that the executant or the person who puts the signature has done so after understanding the contents of the document. It has to be proved that the testator has put his signature after understanding the contents of the document. The fact of registration is not a conclusive evidence of due execution. Since official acts are presumed to be regularly done, the fact of a registration might create a presumption of a due execution, but not the proof thereof. अब आप सोच रहे होंगे यार इतना सारा, अब देखिए ज़्यादातर ये सारी चीज़ें विल के कंटेक्स्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे ना विल वाला इशू बहुत रेलेवेंट हो जाता है. दिल्ली में भी जब भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा डीजीएस में भी, तो वो विल के ही कंटेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम बना के देंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 68, 69, और इसी में आपको घुमाएंगे 67, 68, 69 एसेट्रा. तो अगर आपको ये सेक्शन क्लियर है आप कभी नहीं फंसेंगे. तब अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अटेस्टिंग विटनेस को तो प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उनको कोर्ट में बुलाना और उनका एविडेंस लेना इज़ वेरी एसेंशियल. ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे जब अटेस्टिंग विटनेस जिंदा ही नहीं है? व्हाट इफ ही डाइज, तब क्या करेंगे? तो सेक्शन 69 उस कॉन्टिजेंसी के लिए वो कहता है कि आप कैसे प्रूफ देंगे व्हेन देयर इज नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड. सेक्शन 69 says if no attesting witness can be found or if the document purports to have been executed in United Kingdom, then it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and the signature of the person executing the document is the handwriting of that person. तो आप हैंडराइटिंग से प्रूव कर सकते हैं एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस के कंटेक्स्ट में कि जो अटेस्टेशन हुआ वो उसकी हैंड राइटिंग में था और सिग्नेचर जो उसने जो दिया है वो अपनी हैंड राइटिंग में दिया है. ठीक है, ये दो चीजें. ये कब अप्लाई होता है? ये एक्सेप्शन है व्हेन द अटेस्टिंग विटनेस कैन नॉट बी फाउंड. तो चाहे वो मर गया हो, चाहे वो कहीं और चला गया हो, आउट ऑफ कंट्री चला गया हो, एसेट्रा. तो ये उस सिचुएशन के लिए है जब अटेस्टिंग विटनेस को ढूंढा ही नहीं जा पा रहा है. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सीधे नहीं चलता. फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, देन ओनली यू कैन कंप्लाई विद सेक्शन 69. अब हैंड राइटिंग कैसे प्रूव करेंगे? हैंड राइटिंग यू कैन प्रूव बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट? सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सेक्शन 47. हैंड राइटिंग की जब भी बात होगी तो आपको उन सारे सेक्शंस का ध्यान रखना है, 45, 47 एंड इवन 73. सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. Then we come to section 70. Admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though is the document required by law to be attested. अब ये सेक्शन एक तरीके से serves as a proviso to section 68. अब इस सेक्शन का इफेक्ट ये है कि ये एडमिशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट को एक सफिशिएंट प्रूफ की तरह ट्रीट करता है बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ, इवन दो द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स अटेस्टेशन बाय लॉ. तो मान लीजिए आप मेरे अटेस्टेटिंग विटनेस हैं और कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट है, वो मेरे खिलाफ प्रूफ होना है, मैंने ही साइन किया है. अब कोर्ट में जब मैं ही बोल देता हूं कि यस आई एग्जीक्यूटेड दैट डॉक्यूमेंट, then that would be treated as a sufficient proof as its execution against me. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो एडमिशन शब्द इस सेक्शन में यूज हुआ है ये आपका सेक्शन 22 या 21 या 17 वाला एडमिशन नहीं है. ये एडमिशन ओनली रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये उसी फैक्ट तक लिमिटेड है कि अगर मुझसे पूछा जाए क्या ये डॉक्यूमेंट आपने एग्जीक्यूट किया था एंड आई एम द ऑथर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, मैं बोलूंगा हाँ. So, as far as the execution of that document goes, that would be sufficient proof as against me. अब आप अटेस्टिंग विटनेस है, आप आके क्या बताते हो? यही तो बताते हो कि डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था, डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया था. तो अगर मैं ही उस डॉक्यूमेंट को एडमिट किए ले रहा हूं कि येस आई एग्जीक्यूटेड दैट डॉक्यूमेंट, तो सेक्शन 70 एक जनरल बात कहता है कि दैट वुड बी सफिशिएंट प्रूफ एज इट्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट मी. ठीक है. Then we come to section 71. It says if the attesting witness denies or does not recollect the execution of a document, its execution may be proved by other evidence. अब मान लीजिए आप मेरे attesting witness थे, आप आते हैं कोर्ट में और आप कहते हैं मुझे याद नहीं, I do not recollect the entire fact. ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या आप डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स प्रूव हो सकता है दूसरे तरीकों से, पर
सेक्शन 71 कब ऑपरेट होता है? ये सिर्फ उस सिचुएशन में ऑपरेट होगा जहां पे अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर देता है और हैज टर्न्ड हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल या तो हो जाए कि भाई मैंने, मान लीजिए आप मेरे अटेस्टिंग विटनेस हैं, आप कह दें कि मैंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया ही नहीं था। ठीक है। सेकेंडली, या तो आप ये कह दें कि आई डू नॉट रिकलेक्ट द फैक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट बाय सर। सो इन दैट सिचुएशन सेक्शन 71 यूज में लाया जा सकता है टू प्रूव द डॉक्यूमेंट बाय अदर एविडेंस, टू प्रूव इट्स एग्जीक्यूशन बाय अदर एविडेंस। अब ये जो सेक्शन है, ये लेजिस्लेचर ने एक सेफगार्ड की तरह रखा है। ठीक है, लेजिस्लेचर ने मेन मैंडेटरी प्रोविजन बनाया सेक्शन 68, वो मैंडेटरी प्रोविजन है। सेक्शन 71 को उसने सेफगार्ड की तरह रखा है कि मान लीजिए आप हॉस्टाइल हो जाएं या डिनाई कर दें द एग्जीक्यूशन, तो ऐसा ना हो कि एक जो स्पेसिफिक फैक्ट है जो डॉक्यूमेंट से प्रूव होना है वो प्रूव होने से रह जाए जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स। तो आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 68 में जहाँ पे मैंडेटरली अटेस्टिंग विटनेस इफ एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड बाय लॉ, तो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है। लेकिन उसके आगे के जो सेक्शन है ना, फिर वो थोड़े एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात करने लगते हैं कि मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस जिंदा ही नहीं है, या मान लीजिए 70 में एग्जीक्यूटर ने खुद ही एडमिट कर लिया, या मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस ने डिनाई कर दिया कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या डज नॉट कलेक्ट द फैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे? तो देखिए अब वो ना उन सिचुएशन से डील कर रहा है जो सामने आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 71 कैन नॉट बी यूज्ड एज टू अलाउ अ पार्टी टू गिव अ गो बाय टू द मैंडेट ऑफ सेक्शन 68 एज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलिंग एन अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, सेक्शन 71 के होने का मतलब ये नहीं कि सेक्शन 68 से कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। इट इज मैंडेटरी दैट अ पर्सन शुड कंप्लाई विद सेक्शन 68। तो मान लीजिए आपको कोई विल प्रूव करनी है और दो अटेस्टिंग विटनेस हैं, दोनों अवेलेबल हैं, बोथ ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस आर अवेलेबल, और एक अटेस्टिंग विटनेस कहता है कि आई डू नॉट रिकलेक्ट द फैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, पर जो दूसरा अटेस्टिंग विटनेस है वो अवेलेबल भी है एंड उसकी मेमोरी उस पॉइंट पे ठीक है कि एग्जीक्यूशन हुआ था या नहीं था, या नहीं हुआ था, और आप उसे एग्जामिन नहीं करते हैं मान लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 68 की, वो सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी। अब आ जाते हैं लास्टली ऑन सेक्शन 72। ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है जिसको लॉ रिक्वायर नहीं करता है अटेस्ट करवाने के लिए, देन इट कैन बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। ठीक है, देखिए 68 किस सिचुएशन पे अप्लाई करता है? वेयर द लॉ रिक्वायर्स अ डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड, तो उसके लिए अटेस्टिंग विटनेस बुलाना है। लेकिन जहां पे एक ऐसे डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन करवाया गया है जिसमें लॉ रिक्वायर ही नहीं करता है अटेस्टेशन, तो उसको आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। देखिए, याद रखिए, रिकॉल करने के लिए मैं आपको फिर से सेक्शन 67 से लेके अभी तक के प्रिंसिपल बता देता हूं। अ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन। आप उसकी हैंड राइटिंग साबित कर दीजिए, तब आप उसको प्रूव कर सकते हैं। साथ में अगर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, देन यू हैव टू मैंडेटरी कॉल वन अटेस्टिंग विटनेस। बस प्रोवाइजो सेक्शन 68 में ये दिया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो विल नहीं है रजिस्टर्ड हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस अनलेस द एग्जीक्यूटर डिनाइज द फैक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अटेस्टेटिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो अटेस्टेशन आप उसकी हैंड राइटिंग में प्रूव कर दीजिए इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? सेक्शन 69। देन सेक्शन 70 says that if the executor by himself admits the fact of the execution, that would be sufficient evidence against him as to the fact of execution। ठीक है, सिर्फ execution तक के लिए वो confined है। सेक्शन 70 क्या कहता है? Admission of a party of an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it is a document required by law to be attested। Then we come to section 71। वो क्या कह रहा है कि if the attesting witness turns hostile or does not recollect the fact of the execution, then you can prove the document by other evidence। सेक्शन 72 अब वो बात बताता है, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन करा लिया जिसको लॉ कहता ही नहीं अटेस्ट करवाओ, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन प्रूव द डॉक्यूमेंट एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। तो ऐसी सिचुएशन में अटेस्टेटिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के लिए प्राइमरली सेक्शन याद रखने हैं सिर्फ। ठीक है, सेक्शन वैसे भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि जितने भी कंसेप्ट्स निकल रहे हैं सब सेक्शन से निकल रहे हैं।
सो रिमेंबर द सेक्शन 69 में ये याद रखिएगा कब अप्लाई करता है, व्हेन दी अटेस्टिंग विटनेस कैन नॉट बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन यूनाइटेड किंगडम, देन आप अटेस्टेशन एटलीस्ट उसकी एक अटेस्टिंग विटनेस का अटेस्टेशन उसकी हैंड राइटिंग में प्रूव कर दीजिए। वो आप यूज़ कर सकते हैं बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स या एनी पर्सन फेमिलियर विद द हैंड राइटिंग ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस एज एनविसेज्ड अंडर सेक्शन 47। ठीक है, एज ए जनरल रूल आपको बता दूं कि जो हैंड राइटिंग है ना कोर्ट में, वो कैसे प्रूव होती है, या बाय द प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, जैसा कि सेक्शन 67 में एनविसेज्ड है, बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो कंपैरिजन कर सकते हैं हैंड राइटिंग का एज इज एनविसेज्ड बाय सेक्शन 45, और कोई विटनेस हु इज अक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन एज एनविसेज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, या बाय कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद द अदर एडमिटेड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, कोई भी सिग्नेचर हैंड राइटिंग और सील विच हैज बीन एडमिटेड और प्रूव टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो कोर्ट क्या है अंडर सेक्शन 73 बाय कंपैरिजन ऐसा कर सकता है। यू हैव ओनली दीज सेक्शंस थ्रू विच यू कैन प्रूव अ हैंड राइटिंग। देखिए मैं प्रूविंग अ हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगा। कल हम लोग सेक्शन 65A और 65B से डील करेंगे और उसके जितने भी नुआंसेस हैं वो मैं बताऊंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कॉल्ड CDR रिपोर्ट्स कैसे निकाली जाती हैं। तो जो CDR है, कॉल डिटेल रिपोर्ट जो होती हैं, वो 65B में फॉल करती हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये है ना कि अगर आपको CDR चाहिए किसी केस में तो आप कैसे निकलवाएंगे, ये भी आपको जानना चाहिए, जस्ट इन केस यू नीड इट। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। ये जितने भी सेकेंडरी एविडेंस के नुआंसेस थे मैंने डील कर दिए। बाकी जो सेक्शन 67 है और आपका 72 है, इसमें से 72 तक है, 67 से 72 तक, इसमें विल को लेके बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट का कोई ना कोई इशू इन्वॉल्व करते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस में भी आपको ज़्यादातर सक्सेशन एक्ट के मैटर्स ही मिलेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू देम। ये बस एक जनरल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जितने भी नुआंसेस मैंने आपको बताया उनका ध्यान रखिएगा। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।